Everyone, myself Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I am your host for today. So I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Namole sir. So this is our 43rd lecture, and as we all know, this is the first Thursday. We all are excited to hear from sir. So we are blessed today to have our speaker as our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. As I always say that sir needs no introduction, but there are few things which we like to share about sir. So sir has a vast experience of homeopathic practice, more than 27 years now. He is an author of a bestseller book that is Humanopathy. He is conducting seminars offline as well as online. Offline seminars are more than 300, and they are especially in the rural regions of, I think, all over the Maharashtra. Sir has taken the seminars, and now he is taking online lectures, as well as he is giving online coaching to the aspirant homeopaths across the globe. So he has his unique way of teaching, because teaching is he's a teacher by passion, not by profession. So, and he is developing his own method, that is Mind Method by Dr. Liaquat. And apart from being a wonderful teacher, he is a wonderful poet too. And I think that's because of this quality of his, he could understand the word. Actually, he has understood the word empathy. And he says homeopathy is empathy. This is the mantra given by sir to us. So we are really blessed and lucky to have a guru as a sir, as a mentor, as a guide, and as a friend as well. So without wasting much of the time, let us learn from sir. So welcome, sir. Over to you, sir. अरे यार, इतना तुम लोग बोलते हो ना, मुझे ऐसा डर लगता है मतलब मेरे को दाढ़ी बढ़ा के वो संन्यास में लेना पड़े इतना ऐसा कर दे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं द्रोणाचार्य बन गया माशाल्लाह से. Thank you, Mansi beta. You've been always very profuse about praising me. पहले ये काम निशु करती थी मेरी बहन, अभी मानसी करने लगी है तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरी स्तुति करते हो तो माशाल्लाह से. By the way, guys, one request that today our host has muted everybody. जिस किसी को भी सवाल पूछने का रहेगा वो हाथ ऊपर करना, हम लोग उसको चांस देंगे सवाल पूछने के लिए. और कुछ भी सवाल पूछिए. No question is a silly question. Might sound silly, but it will surely help others, because thousands of people are watching our videos and thousands are going to watch it later. Okay, it's going to be there on the wall forever, inshallah, till YouTube is there. So you can ask any questions. Okay, just don't make noise, and that's the thing. Otherwise, ask any questions. I'm ready to answer. Today's topic is my favorite topic, case taking. Very, very favorite topic. I don't have a format of case taking as many of the stalwarts have. The big shots of homeopathy, they have their own way of the huge case papers also, which is of course very useful for their methods, and otherwise also it is very useful. But I always call myself a homeopathic general practitioner. I have never behaved like one consultant or this thing. I am always a homeopathic general practitioner. Okay, and everybody should have that mind set up if you want to really understand the patient, and if you really want to help them, if you really want to heal the sick. Remember what Dr. J.T. Kent has said in his philosophy, in his book of philosophy, that we as homeopath not only save the patient, but we save the races. Mind you, this sentence has such huge impact on me, on my personality, on my understanding of the patient and understanding of humanity
and homeopathy, of course, as to why I am homeopath and I remain to be homeopath, and with the grace of Almighty, even my son has taken admission in homeopathy college in CMD Mumbai. So I'm passing that dynasty also to him and passing the genes of homeopathy also to him, mashallah. Okay, so I will remain homeopath in the next birth also. My next birth is my son. His next birth will be his child, of course. So that is what I call next birth to be. Next birth for me is just not you die and then you come back. I don't know about that, and I don't want to comment. Of course, I would like to come back again on earth if there is a rebirth. Of course, I would love to come back. Oh, and I think to myself, what a wonderful world. I remember that song very much, George Benson's, and in Marathi also, Ya Janmavar Yad Jagdyavar Shatada Prem Karave. Of course, I love this phenomena called life, and I would again, if born again, I would really love to be homeopath again as a profession. I would choose homeopathy as my profession, of course, because that is how you can heal so many sick souls and you can save them from upcoming very serious diseases and you can actually reach out to their genes and actually you can save their next generations also from getting more diseases by getting it into the genes. Okay, so we as homeopaths have great responsibility. Why I'm talking about this introduction, why I'm giving this introduction is that the purpose is that we should be very serious about treating the patients. Okay, we should be very serious about choosing the remedy. Okay, we shouldn't use very superficial prescriptions. Our prescriptions should not be very superficial, nor should they be guided by whims and notions. And okay, we should not be conformist at all at any stage of our life, as a homeopath and otherwise also. It's very dangerous, and we are seeing the effects of the conformism. We are actually facing the ill effects of conformism from ages, and the conformism is coming to peak nowadays all over the globe. All over the globe, we can see that happening in US, in India, in all the countries, and in politics, in society, in medical practice, in business, everywhere we can see the bad effects of the traditions and the prejudices of the traditions and the conformists. So being homeopath also, we should not become conformist. We should not have fixed ideas of remedies. We should have images, not fixed images. Please remember, to have image of a remedy is good to remember it, to remember its rubrics, to remember its indications, but it is simple. Homeopathy for me is proving the same symptoms found in patients. Similia Silvus Curenta is the mantra. We should never forget what our master, Dr. Hahnemann, may God bless him, has told in Organon, the the Similia Silvus Curenta. We shouldn't forget that. Okay. Now let's start the chapter case taking. How the opening we have to the opening and the closing of the case are the two very important things. Okay. Many times what I do is if I don't understand or if I'm stuck, I close the case and see the reaction of the patient. So during closing, people speak their heart out. हम लोगों ने देखा है ना कि वो एक ये है लोग रोक के रखते हैं अपने आप को. If you go to see off somebody, if he's traveling by train or even by traveling even by एरोप्लेन हो wherever, आप जब छोड़ने जा रहे हो तो जब ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो बहुत सी चीजें हम लोग बोलते हैं. हमने देखा होगा इवन प्लेन में भी आप छोड़ने जा रहे हो तो जब आप उसको वो गेट पे छोड़ते हो तो आप बहुत सी चीजें बोलते हो. रिमेम्बर दिस थिंग. तो जब आप निकलते वक्त घर से निकलने वक्त आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो मैटर करता है. सफर में आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो वो मैटर करता है. और जब आप क्लोज कर रहे हो, जब आप उसको सी ऑफ कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है. सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग, और इन बिटवीन का जो भी मसाला है वो मसाले को हमको जज करना पड़ता है बहुत ज्यादा.
ओके, वो बहुत दिमाग खराब करने वाला होता है। इसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हमने अच्छे से ध्यान में दिया तो हमारे आधे से ज्यादा चीजें वहीं पर सॉल्व हो जाती है। ओके, तो हम लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में एक बात कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इट लास्ट्स, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट्स वेरी लॉन्ग, रिमेंबर दैट। ओके, एंड you make a judgment of the person by meeting it first time. Okay, so remember, what is the first impression of the patient on you makes a huge difference. So the major part of the case taking is starts from the how the patient has taken your appointment, how is he coming to you. Okay, so right from the phone call that he makes to come to you, if you initial days of the practice, of course we ourselves pick up the phone, right, unless and until you have a father like me, from whom you got the clinic, and then the clinic is all set, and then you are sitting directly in the consulting, and rest of the things are taken care of by the receptionists and the assistants. But if you are a beginner like I had, and how you and when you talk to the patient when he's calling you for appointment, okay, that we have to remember very much as to how is he calling, what is his tone, whether he's greeting you or not. See, many times people from villages do not understand, even from cities, even even the ladies of the house, they are not very social. Okay, तो उनको कैसे बात करना है, क्या करना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होता है अपने, बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और मोबाइल बहुत से लोगों को डरावना भी लगता है अभी भी। तो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट, वो भी आपने याद रखो कि तुरंत आप जज मत कर लो, लेकिन बाय एंड लार्ज बाय द फोन कॉल यू अंडरस्टैंड। ये भी तुमको पता चलता है ना कि बंदा नौ सीखे है, इसको फोन का अब तक नहीं आता है, क्या कैसे बिहेव करना है ना। तो वहां से करना है, हाउ। हेलो, कैसे बिहेव करना है, ये हमारे मन में सबसे पहले सवाल आता है ना कि यार ये इंसान को पता नहीं हाउ टू बिहेव, है ना। सॉरी, आई हैड कॉल। सो कैसे बिहेव करना है ना, हमको पेशेंट का बिहेवियर इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम लोग बोलते हैं ना यार, ये बंदे को बात करने की तमीज नहीं, फोन पे कैसे बात करता है ना। तो आपकी क्या रिएक्शन आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपने उस पेशेंट के बारे में क्या समझा। अब आपकी समझ कितनी सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा मामला हमारी समझ का होता है। व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट वी what we think, what we infer from what he has said is very important, right? What understanding we have, what impression that patient has given on us on the phone call. Hmm? How is he behaving with your receptionist? अपॉइंटमेंट आपको समझने के लिए मैं काफी बार पेशेंट को, मेरे रिसेप्शनिस्ट को पूछता हूँ कि पेशेंट ने कैसे क्या बोला था। इस तरीके से अभी तो वो काफी सालों से मेरे साथ में है, तो बता देते कि पेशेंट ऐसे बोल रहा था सर, वो बोल रहा था, बहुत स्टाइल मार रहा था सर, और मुझको हेलो मैडम बुलाता है। कभी कोई पेशेंट हेलो है सर है क्या, सर को दो डायरेक्टली बोलता है। सर ये कैसा पेशेंट है, मुझे बोलता है डायरेक्टली, तो मुझे क्या समझता है सर, ये ऐसी भी मेरी असिस्टेंट बोलती है ना। तो ये समझ लीजिए आप, इस पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास में फोन है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, तो आप रिकॉर्डर ऑन रखिएगा, ताकि पेशेंट ने आपको क्या बोला, कैसे बोला था, वो आपको समझ में आने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो
that is a advice. Now, this is opening of the case, right? Now, if you don't know how we spoke, how we took the appointment, okay, then how is he actually coming to you? Right from the entry of the patient, okay? Now, when entering the clinic, काफी पेशेंट बाहर से बोलते हैं योगा डॉक्टर, सुना है आप लोगों ने ना, आओ के सर, हाय, है ना, या फिर बाहर नमस्कार कैसे हैं. मुझे याद है, आई रिमेम्बर वन ऑफ माय पेशेंट्स, he happens to be a very guru, is devotee of Sai Baba, and उनके यहाँ पे साई बाबा की आरती वगैरह भी होती है, बहुत उनके शिष्य है. तो मैं उनको कभी जीवन में मिला भी नहीं था. He was referred to me by a sadhu from Shirdi. Though the patient is from Nasik, okay, he was referred to me by a sadhu. Not, I don't know him. Maybe I must have treated him sometimes. So he was referred to me by a sadhu from Shirdi. So this man from out itself, from when he was entering my clinic, not my consulting, not my chamber, he was from outside. नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, दिल होगी ना, नमस्कार नमस्कार. कैसे हाँ, आपके दर्शन हो गए, बड़ा सौभाग्य है मेरा. तो मेरा यार क्या सौभाग्य, मेरे दर्शन मतलब क्या, मैं तो बैठा ही इधर ही हूँ, है ना, और मेरे यहाँ पे कौन सी कतार लगी हुई कि मैं दर्शन के लिए भाई आ जाओ आशीष. ऐसा थोड़ी ना, अपन तो ये बाबा है कि दर्शन नहीं देते. वो 3 महीने नहीं कर, है ना. मेरा ये सिंपल है कि भाई अगर आप बीमार हो तो आई शुड बी अवेलेबल एटलीस्ट, ओके. भले आपका नंबर आने को 2 घंटे लगे, 4 लगे, बट ये नहीं कि आपको बोलेंगे 1 महीने के बाद पॉइंट. तो ये सब डजंट मैटर, है ना. और आपके दर्शन हो गए तो मतलब की क्या बात है यार, आप आओ, क्या है, जो भी तकलीफ बताओ, पाइल्स वगैरह, उनको काफी तकलीफें थी. बट यहाँ से मेरी केस टेकिंग शुरू हो गई थी. जिसको मैं जीवन में पहली बार मिल रहा हूँ, जो बंदा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा मुझ में कुछ नहीं कि आप मुझे इतना ये करो कि भाई ये आओ वगैरह वगैरह. एंड द सेम मैन व्हेन ही लेफ्ट डिडंट पे द मनी, ओके, ही डिडंट पे मनी. अरे है फीस उसकी, मेरी वाइफ सेड ना फीस का, अरे नहीं ये महाराज जी आपका प्रसाद है, बहुत अच्छा है, फीस नहीं दिया करते. अभी तो मेरे भाई यार ये क्या बात है, दिमाग खाया आधा बेटा. बाहर से तो नमस्कार, आपके दर्शन हो गए, भाई दक्षिणा नहीं डाली, समझ गए ना. तो व्हाट कुड बी द रेमेडी? हेलो, अनम्यूट करो बेटा प्रणीता. Yes, sir. What could be the remedy? अगर बोलना है तो ही अनम्यूट करो, नहीं तो ये मत करो यार. हाँ, अच्छा, मधु इज सेइंग विराट रमन, ओके ओके. इंसाइटिंग, तो इंसाइटिंग में और कौन कौन है मधु बेटा? इंसाइटिंग से भी ज्यादा थोड़ा सा आप सोचिए ना, और थोड़ा सोचिए ना. वाई फॉस्फोरस श्रद्धा, हालांकि ये रेमेडी इंसाइटिंग में है, परंतु उससे भी ज्यादा क्या, कैसे बिगिन करेंगे हम? हाउ विल यू अंडरस्टैंड द पेशेंट फ्रॉम एंट्री? व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट, व्हाट आर द थिंग्स दैट केम इन योर माइंड? बोलिए जरा. एंट्री से आपको क्या समझ में आया? एग्जैक्टली फ्लैटरिंग है ना, फ्लैटरर. दूसरा आपके मन में मैग्नेटाइज भी आ सकता है. Reverence, okay, veneration, I am not reverence, because veneration is to the God, to chair, to higher authority. Reverence for those around him. He has to be, he should be revering everybody around. So it's not reverence for those around him. This is actually veneration. But, so we started from there, right? If sound is not clear, the problem is on your side, not my side. Please remember that. Anyways, so flattering, right? Flattering आएगा ना, क्योंकि ये आएगा ना, ये आपसे काम निकालने के लिए मधु
वेनरेशन, फ्लैटरिंग, देखो क्या है, देखो फ्लैटरिंग लेके वेनरेशन लेके चलो, है ना। अपन फिर हम लोग सोच रहे वेदर दिस इज वेनरेशन, वेदर दिस इज फ्लैटरिंग, राइट। या तो फिर ये भी मन में आ सकता है कि चाम में दर्शन, पर चाम वाले अलग कैसे है ना, चाम का एक अलग आएगा। ये तो दिख ही रहा है इतने दूर से, और बंदा कैसा है, इतने दूर से नमस्कार। हेलो। तो बंदा इतने दूर से नमस्कार करते आ रहे, मतलब कैसा है ये। हेलो, हेलो, एकदम क्या है, लाउड है ना। दिस शो दैट ही इज अ लाउड पर्सनैलिटी, राइट। हेलो, ही इज अ लाउड मैन, ही इज नॉट दैट डिसेंट सोबर टाइप। हेलो, ये समझना है हमें, तो रेमेडी समझा दूंगा मैं आपको, दिमाग थोड़ा सा शांत कर लो। मतलब ये बंदा लाउड टाइप का है, ये अपने जैसा, जैसे मेरे कपड़े भी अगर आप देखोगे तो ब्राइट नहीं दिखेंगे, ये भी म्यूट रहेंगे। तो इज नॉट दैट सोबर कैटेगरी टाइप, नॉट द सोबर डिसेंट डिग्निफाइड टाइप, इज दैट फुल लाउड माउथ, एकदम फुल नेतागिरी वाला, है ना, चिल्लम चिल्ली वाला, सादी भाषा में। मतलब ये बंदा झगड़ भी सकता है तो बहुत एकदम, समझ रहे हो ना। तो इज दैट टाइप। लाउड होते हैं ना, एक होते हैं लाउड, एक सोबर होते हैं, एक इन बिटवीन होते हैं, थोड़े से मोडेस्ट होते हैं। आर यू गेटिंग मी। तो इज दैट टाइप। हाँ नीतू बोल बेटा, गुड नीतू पांडे इवनिंग सर। बोलने दो इनको। गुड इवनिंग, गुड बोल बेटा। इवनिंग सर। मेरे हिसाब से सर ये हायोस हो सकता है, हायोसाइनस। ठीक है बेटा। Okay. हाथ नीचे कर लीजिए नीतू। हाँ, इट इज नॉट हाइसम, आई एम एक्सप्लेनिंग। तो मतलब ही इज अ लाउड टाइप ऑफ पर्सन, ओके। मतलब क्या, ये वो सोबर वाला तो नहीं है। ओके, तो फुल अपने आप को एकदम बड़ा बताने वाला। थोड़ा नेटवर्क, तो वो दिस मैन इज नॉट अ सोबर टाइप, इज अ लाउड मैन, ओके, सिंपल ना। तो पहला रूब्रिक मेरे मन में आएगा, क्या आएगा आपके मन में। डिल्यूजन ग्रेट आपके मन में आ सकता है, पॉम्पस आ सकता है ना, फ्लैटरर आ सकता है, डिसऑनेस्ट आ सकता है, जाते जाते पैसे नहीं देकर गया, है ना। तो इज नॉट ऑनेस्ट मैन, है ना। हेलो, डिसऑनेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, राइट। इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। तो दिस मैन इज एक्चुअली सल्फर, फ्लैटरिंग, वेनरेशन, पॉम्पस, डिसऑनेस्ट। समझ रहे हो। सो द रेमेडी आई हैड गिवन इन सल्फर, okay. Anyway, now any questions regarding the case? Okay, now let's go further. Entry. Now people, many people, they knock the door. Of course, if the assistant, even if the assistant said, even then they knock the door, right.
We have seen many people knocking the door and then coming inside. If your door is locked, they are little polished type of personalities. It can be well mannered. It can be that they're scared. कि अरे ऐसे नहीं चलना चाहिए. एक वो भी होता है ना कि अरे यार कोई चीज डॉक्टर को मेरी पसंद नहीं आ गई तो क्या करेंगे, है ना, गलत दवाई ना दे दे. ये भी एक चीज आपके मन में आएगी, उसके कारण भी आप वैसा बिहेव करोगे. Right? So there are reasons why a person is decent. There are reasons why the person behaves in a sober way. कितने बड़े बड़े गुंडे होते हैं, लेकिन क्लिनिक में आने के बाद में बहुत से लोग एकदम शिस्ती में आते हैं, बताते हैं अच्छे से, अदब से आते हैं, अदब से बैठते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते होते हैं ना. और कुछ नहीं ऐसे फिर भी आके आपके सामने ऐसे एरोगेंटली बिहेव करेंगे. तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड. ओके, तो हम लोग जब पूछते हैं पेशेंट को बाद में, when we come to know about his profession as to what he is doing and how is his behavior otherwise and how is he behaving with you, then you can differentiate. So many patients I have seen, दरवाजा खोलने के बाद में पहले अंदर आके आओ क्या सर पूछते हैं, पहले सर अंदर आता है फिर पैर अंदर आता है. ये मैं हमेशा बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये टिपिकल एंट्री है ना. आपने अगर देखा होगा, ये टिपिकल एंट्री है आर्सेनिक एल्बम की, है ना. अंदर सर आता है फिर पैर आता है. आप देखिए, आप भगवान के उसमें जब जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है, या जहाँ पर दरगाह होती है, जहाँ पर ये होता है उनका समाधि होती है, वहां पर जब हम जाते हैं तो हमने देखा हुआ है कई लोग पहले, उसके अंदर ये होता है कि आपका पहले सर आता है फिर आपका पैर जाता है. राइट? इट इज वेरी एरोगेंट. इट इज नॉट राइट टू कीप द फुट फर्स्ट एंड देन हेड इनसाइड. पहले आपका सर अंदर जाना चाहिए और फिर पैर जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, बराबर. तो दिस इज वेनरेशन एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर. राइट? तो अगर ये दोनों आप मिलाओगे तो आर्सेनिक एल्बम आ जाता है. बहुत से पेशेंट में देखे हुए अंदर आते वक्त आएंगे, दरवाजा खोलेंगे, फिर बंद करने की कोशिश करेंगे, खुल के अंदर आएंगे, अंदर आके शांत बैठेंगे और फिर दरवाजा बंद करने की कोशिश करेंगे. कई लोग एकदम फोर्सफुली उसको बंद करेंगे, कई लोगों ने उसको एकदम ऐसे शांति से बंद कर दिया, बंद करके देखा दरवाजा नहीं बंद हो रहा है तो वैसे ही छोड़ दिया. तो यील्डिंग, सोबर, सॉफ्ट पेशेंट है, यील्डिंग है, मान गया, चलो जाने दो, है ना, नहीं बंद हो रहा है, बंद करके देखा, हालांकि वो बंद करना चाहता है, बंद करके देखा नहीं बंद हुआ तो छोड़ दिया, और फिर कम आवाज को खत्म कर दी. तो ज्यादातर ये स्टेफिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती है जो ऐसी होती है. ओके, सोबर है, यील्डिंग है, और शांत है, प्रॉपर है. सो क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड, क्या है स्टेफिस का वर्ड? पोलाइट, है ना. टू पोलाइट, नॉट ओनली पोलाइट, इट इज टू पोलाइट. टू पोलाइट, यील्डिंग, कावर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, मतलब बंद करना चाहता है लेकिन नहीं बंद करना. कावर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, है ना. कावर्डाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियन, है ना. तो अगर आप ये रूब्रिक डालोगे तो यील्डिंग और ये अगर डालोगे तो आपका स्टेफिस आ जाता है. स्टेफिस अगर मैं देखा हूँ, इवन द एम्बैरेसमेंट ऑफ द फेस इज नॉट वेरी मच, यू नो, दे विल शो ऐसा. Anyways, so the entry, how the patient is entering, the arrogant person will enter, डॉक्टर, फिर सीधा आके, है ना, आप समझ रहे हो ना किस तरीके से एंटर करना है पेशेंट. कोई सोबर तरीके से कर रहा है, कोई अंदर आके कर रहा है, कोई अंदर आके सर नमस्कार कर रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है ना. कोई आके शुभ प्रभात ऐसे भी बोलेगा, शुभ प्रभात डॉक्टर साहब, शुभ दोपहर. मैं एक बार आया था, कोविड के दरमियान की बात है, मैं ऊपर आ रहा था क्लिनिक, मेरा फर्स्ट फ्लोर पर, पेशेंट बाहर बैठा हुआ था. हाँ, तो वेटिंग में ही जब मेरे सामने में आया तो शुभ प्रभात, शुभ क्या, शुभ दोपहर. मेरा यार ये शुभ दोपहर क्या है, पर पेशेंट ये है, शायद बार्बर है. पहला शुभ दोपहर, और आया था बुखार के लिए, शुभ दोपहर आया है मुझे बुखार. एंड आई टोल्ड हिम भाई तेरे को कोविड है, बिकॉज फीवर था और सफर भी करके आया था. सिम्टम दैट ही हैड टोल्ड
that a COVID, the simple prescription for me was क्या था? शुभ दोपहर मेरा और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को एक पेशेंट ने 1 बजे जब आया था, शुभ मध्याह्न, बाप रे, मैं सोच रहा था मध्याह्न, मध्याह्न मतलब क्या? है ना, सोमवार, सोमवारच्या शुभेच्छा, गुरुवारच्या शुभेच्छा, ऐसे आते ना बहुत, तो ये वाले पंचक लोग होते हैं। तो ये कौन था? ये शुभ दोपहर, फीवर के अंदर भी शुभ दोपहर बोल रहा था। हेलो, नो गेसेस, नो अंडरस्टैंडिंग। हेलो, सल्फर ऑब्वियसली इतना लाउड, इतना अफेक्टेशन, इतना टेक्निकल वर्ड्स यूज करने वाला, सल्फर बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। एनीवेज, तो एंट्री all under, समझ गए? First action of the patient is very important. When he's entering, when he sits, now whether he's sitting in the chair immediately close to the door or the chair which is inside, makes a lot of difference. Again, I'll tell you how. Let me show you my clinic, how it is. The curtain which I have on the left side, if you can see, this curtain is the entry. Okay, the door is closed. Now the patient is sitting in this chair or this chair. Makes a huge difference. If he's got somebody then sitting in this chair, will make sense. If he doesn't have anybody and if he sits in the chair close to the door, is that can be understood. Okay, but if he comes in and sits in, मतलब ये बंदे के पास में फुर्सत है ना, जो अंदर इस तरफ आके अंदर की चेयर में जाके बैठ रहा है, मतलब इसके पास, इसको बहुत फुर्सत है। एक समझ लेना कि ये आपका वक्त काफी लेने वाला है और इसको या तो सिक्योरिटी भी होगा, है ना, समझ रहे हो कि अंदर की चेयर में आकर के बैठ रहा है दरवाजे से दूर, ये नहीं चाहता है कि बाहर लोग पता चले। यहाँ ये बहुत ज्यादा केयरफुल है कि कोई दूसरा बंदा भी आके बाजू में बैठ सकता है ना, मान लो कि कोई और पेशेंट आ रहा कुछ भी, तो लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि ये बंदा आपके पास में ज्यादा देर बैठने के लिए आया है। एक और दूसरा कि इसको काफी चीजें ऐसी बोलनी है जो वो नहीं चाहता है कि बाहर लोगों को पता चले, है ना, ज्यादा इसको थोड़ा सा सिक्रेटिव रखना चाहता है। ओके, हेलो, any doubts, anything that you all want to say, any possibility other than that? हेलो, हाँ बोलो, प्रणीता लाइन म्यूट कर। हाँ नीतू बोल बेटा। हेलो सर, अगर जैसे ये सेकंड वाली चेयर पर पेशेंट आकर बैठता है, फुर्सत में ज्यादा है या वो ज्यादा टाइम आपसे कोई चीज डिस्कस करना चाहता है या कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता है अपनी कंप्लेन को, तो सर उसके लिए क्या लेंगे या अदरवाइज सिर्फ एक हाँ बताओ क्या ले सकते हैं उसमें? एक तो सिक्योरिटी आ सकता है, एक क्लिंगिंग ग्रास्प आ सकता है कि बात चिपक रहा है, अभी आपको छोड़ना नहीं चाहता है ना, आपको बाद में आपको पता चलेगा ना कि यार ये बंदा छोड़ रहा नहीं है अपने को, या ऐसी क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आके बताने वाला है। और एकदम अंदर आके अच्छे से बैठ के एकदम ऐसा बहुत बहुत तगड़ा कुछ ऐसा बताने वाला, ऐसा आके बैठ के ऐसा उसका एक्सप्रेशन करके और फिर आके ऐसी कुछ छोटी सी चीज बता देगा कि मेरे को सर्दी है ना, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है क्या? नहीं, लेकिन जो उसने ऐसा माहौल बनाया, वो खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला अगर माहौल बनाता है तो क्या आएगा? तो डिलीजन प्रेग्नेंट विद फ्लैटस इन है ना, डिलीजन प्रेग्नेंट ऐसा लगेगा कि यार बहुत कुछ है पेट में, बच्चा है, लेकिन निकलेगा क्या? गैस। एक्सेगरेटेड भी बोल सकते हैं। डिलीजन प्रेग्नेंट with distension of abdomen from flatus. So the remedy in there is Ignatia and ozone, Ignatia, ozone and Sabadilla. है ना, अगर एकदम बहुत ऐसा सीरियस माहौल बना के आएगा, you know, I have to tell you something very important, doctor. I need to discuss something very important. Then when he comes and then you come to know, bloody hell, ये क्या बोल रही है? इसी चीज के लिए मेरा इतना भी दिमाग खा रहा है यार। हेलो,
मान लो कि फॉलोअप है, फिर भी आपकी समझो नहीं समझ में आएगी, और बाद में अगर कोई पेशेंट इस तरीके से बोल रहा है कि I have to discuss with you very important thing that I cannot discuss on phone or something, you know, like I have to meet and sit and, तो यार, तो ये वाली रुब्रिक मन में आती है। दूसरा कि जैसे मैं बताया कि बहुत देर आपके पास में बैठने वाला है, आपको लगता है यार अभी बहुत दिमाग खाने वाला है, ऐसा लगता है ना, तो वो क्यूरियस भी होता है, यार पेशेंट आएगा बहुत दिमाग चाटेगा, ऐसा फील होता है ना आपको, अभी ये अंदर बैठ गया भाई, अब ये जल्दी उठने वाला नहीं है, मतलब ये फुर्सत से आया है, मतलब पेशेंस वाला, टॉकिंग बिजनेस वाला, है ना, कि भैया ये तो पूरा के पूरा कुछ कर ही जाने वाला है, समझ गए, तो वो पेशेंस वाला होता है, कई बार टॉकिंग बिजनेस वाला होता है, कई बार मनोज ने क्या बोला, एग्जैगरेटिंग विल बी, जो चीज आप कर रहे हो उसको एग्जैगरेट कर रहे हो। मान लो कि अगर आपकी सर्दी है, तो आप सर्दी, क्योंकि रुब्रिक इज एग्जैगरेटिंग हर सिम्टम्स, ऐसा है अगर आप देखोगे, एग्जैगरेटिंग सिम्टम्स हर एक ही है, और एग्जैगरेशन विल नॉट बी इन द बिहेवियर पर से, एग्जैगरेशन मतलब वो एग्जैगरेट करेगा चीजों को ज्यादा। यहाँ पर पॉम्पस आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट है ना, पॉम्पस में क्या रुब्रिक है, पॉम्पस इंपॉर्टेंस फील्स इज पॉम्पस, है ना, तो पॉम्पस हो सकता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण इंसान हूँ इसलिए फिर मैं अंदर बैठूंगा, बात करूंगा, या तो फिर ये कि आप उधर बैठे तो आपके सामने बैठना चाहता है, या तो फिर आपका लैपटॉप उसके सामने तो शायद आपसे नजरें चुराना चाहता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी जो कि कम होती है, बट मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादा वक्त आपके पास आके बैठे, और अगर आपके पास ज्यादा वक्त आकर बैठने वाला है, आप समझ लो ना, कॉर्नर सीट आप कब लेते हो पिक्चर की, तो दीवार वाली कॉर्नर की सीट आप कब लेते हो, वैसा ही है ना, ये इसने दीवार वाली कॉर्नर की सीट ली ना आपकी क्लिनिक की। हेलो, आ रहा है, दिमाग खुल गया थोड़ा बहुत, yes or no guys, please be with me, I don't want it to be a one way traffic. Hello, don't you get that corner वाला seat feel? Anyways, आप लोग unmuted है ना? Is it boring guys? No. Is it boring? Are you getting bored? Yes sir, नीतू बोल रही yes sir. Are you getting bored? No, sir. Okay. Even if you get bored, I can't help because that is what it is. Thank you, Bhavna. Anyways, now the first action of the patient. First action of the patient, right, starts from the entering, starts from opening the, starts from, thank you, beta, starts from opening the door of the patient. If the door is open, how, whether the patient is waiting out, waiting for your assistant to open the door, waiting for the receptionist to open the door. That also happens many times. I have seen, right? कभी कभी बंदा किसी और को आगे ऐसा खड़ा हो जाएगा, फिर उसका असिस्टेंट आके दरवाजा खोलेगा, होता है ना ऐसा, उसके चमचे आके दरवाजा खोलेंगे, राजा महाराजाओं का देखा है ना अपने, जो सो कॉल्ड भाऊ वगैरह, जिनके बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं भाऊ वगैरह, तो उनका वैसा होता है ना। एनीवेज, so the first action of the patient and opening the patient, opening the door, how he comes, whether he's pulling the chair behind and sitting around the picture like a lord, or whether he's coming close, taking the chair close to you and reeling on the table like we see in security patients, or in confined, the patient who is trying to confide in you, or the patient who is weak, so that he has he is taking the help of the table, or the patient is trying to cling to you, or the patient is taking support of the furniture, when that it becomes clinging to person or furniture, possibility आपके मन में आ जानी चाहिए rubrics की, ओके। फिर आने के बाद में कुछ लोग अपने बैग रखते हैं आराम से बाजू की, मैंने आपको बताया था कि अंदर की कुर्सी में आकर आराम से बैठेंगे, फिर अपनी पर्स बाजू वाली कुर्सी पे रखेंगे। कई लोग अपना सामान बाहर रख के आते हैं, सिर्फ रिपोर्ट अंदर लेकर आते हैं। कई लोग अंदर आने के बाद में बैठेंगे, फिर अपना सामान निकालेंगे, फिर नॉइज बनाने वाली चर 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 करने वाली प्लास्टिक की बैग खोलेंगे, फिर उसमें से निकालेंगे, फिर आपके सामने रखेंगे, ऐसे भी होते हैं। तो जो लोग बाहर के बाहर निकाल के अंदर आएंगे, सोबर टाइप के रहेंगे,
केयरफुल रहेंगे, है ना। और जो लोग अंदर आके ऐसा बैठेंगे मस्त जैसे उसके बाप का है, तो वो जैसे उसके बाप का है इस तरीके से बिहेव करने वाले लोग फॉस्फरस टाइप की तरफ चले जाएंगे, जो जो पूरा का पूरा एडवांटेज आपका लेना चाहते हैं, है ना। जैसे हम लोग ट्रेन में देखते हैं ना, आपको ट्रेन में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो सीट के बगल की सीट पर अपना सामान रख रहा है, ना कि वो सीट के नीचे रख रहा है, उस पर से आपको समझ में आता है कि ये बंदा मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठाना चाहता है, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, जो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है ना। अगर ट्रेन खाली है और फिर कोई नहीं है तो फिर बाजू में ऊपर सामान रख दिया, तो एक बार अपन समझ सकते हैं, तो उस वो भी तब समझ सकते हैं जब वो उसमें से कुछ चीज निकाल के यूज करना चाहता है। नहीं तो एक डिसिप्लिन वाला बंदा जो एकदम सोबर है, वो ट्रेन खाली भी रहेगी तो सामान अपना नीचे रखेगा, या फिर वो जो सामान रखने की जगह है वहां पर रखेगा, राइट। तो या तो वो कमजोर है जो अंदर सामान लेके झुक के नीचे नहीं रख सकता है, ऊपर रख सकता है इसलिए बोतल में रखा है, या वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, तो वो उसलिए वहां पे रखा है। और जो प्रॉपर उधर रख रहा है तो वो प्रॉपर टू भी वाला हो सकता है, केयरफुल भी वाला हो सकता है, केयरफुल ऑफ अदर्स वाला भी हो सकता है, और सोबर भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से आपके मन में ये चीजें वहां से आना शुरू हो जाती है, तो इंप्रेशन आप पर डालना शुरू कर देता है। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइडलाइंस, नॉट अल्टीमेट, नॉट total 100% things that only these are the possibilities. There can be other possibilities too. But I'm just telling you what things you should observe. Okay? Now, how is he greeting you? आने के बाद में, बैठने के बाद में नमस्ते बोल रहा है कि सलाम कर रहा है ना। अगर सलाम मुस्लिम आदमी मुस्लिम को सलाम कर रहा है तो एक समझ सकते हैं, एक नॉन मुस्लिम पेशेंट अगर मुस्लिम डॉक्टर को सर अस्सलाम वालेकुम कर रहा है तो क्या मतलब हो सकता है कि क्या ये बंदा बहुत प्यार करना चाहता है लोगों से, वेदर इज वेरी अफेक्शनेट, या फिर वो सबको अपना प्लीजिंग वाला भी हो सकता है, फ्लैटरर से ये चीज से शायद सामने वाला खुश हो जाए, तो ये प्लीजिंग वाला भी होता है। मेरा एक दोस्त है जो अगर सरदार जी से बात करे तो सत श्री अकाल बाबू जी करेगा, अगर जैन से बात करेगा तो जय जिनेन्द्र करेगा, मुस्लिम को सलाम करेगा, किसी और को राम राम करेगा, किसी को जय हरि करेगा, तो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज वाला है। कार्सिनोसिन दिया था मैं इसकी इसी बात पर से, बोला ये बंदा सबको सलाम करता, सबको प्लीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑन दैट बेसिस आई हैड गिवन हिम कार्सिनोसिन एंड ही केम आउट विद कार्सिनोसिन वेरी वेरी वेल। ओके, तो दिस थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड। फ्लैटरिंग के अंदर डिसऑनेस्टी होती है, फ्लैटरिंग में बंदा ऑनेस्ट नहीं होता, अगर ऑनेस्टली कर रहा है तो प्लीजिंग वाला है। अब प्लीजिंग के पीछे इंटेंशन कुछ भी हो सकते हैं, प्लीजिंग के पीछे इंटेंशन सामने वाले से काम निकाल कर लेना भी होता है, या किसी किसी का अंदर से नेचर होता है कि बहुत अफेक्शनेट होती है, तभी भी वो प्लीज करने की कोशिश करते हैं। तो दिस पॉसिबिलिटीज वी हैव टू थिंक, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टार्ट राइटिंग इट, कि ये ऐसा किया तो वेदर दिस इज प्लीजिंग, वेदर दिस इज फ्लैटरिंग, वेदर दिस इज डिसऑनेस्ट, वेदर दिस इज डिसीटफुल, ये काम निकाल कर लेना चाहता है, डिलीजेंट डूइंग बिजनेस तो नहीं है। ओके, तो फर्स्ट एक्शन, फिर कई बार पेशेंट आपके पास में आने के बाद में फिर एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर दूसरी, फिर वो रिपोर्ट के अंदर वो फाइल के अंदर ये पेज देखो, फिर वो पेज निकाल के दिखाएंगे, फिर वो पेज दिखाएगा, वो पेज दिखाएगा, इतना डिटेल में आपको बताएगा, एक एक रिपोर्ट बराबर बताएगा, डेट वाइज बताएगा, ये था फिर ये था फिर ये था फिर ये था, है ना। पत्ते की तरह कुछ कुछ लोग ऐसे आपके सामने डालते हैं, है ना। तो हाई समय होते हैं मोस्टली, या फिर एग्जैक्टली नहीं, सिर्फ वो रिपोर्ट देखो और बाकी जान दो फालतू है, तो वो एग्जैक्टिंग वाला भी हो सकता है, या केयरफुल भी होगा, वो अपना आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता है। कुछ कुछ लोग रिपोर्ट लाते नहीं है, मोबाइल में लाएंगे, कुछ कुछ तो वैसे ही आ जाएंगे, रिपोर्ट नहीं ला सकते, फ्रीविलेंस भी हो सकते हैं, है ना। कोई मोबाइल में दिखाएंगे, कुछ कुछ लोग मोबाइल में दिखाते हैं थोड़ा शर्मा के दिखाएंगे, तो तब उसका एम्बेरसमेंट भी पकड़ा जा सकता है, हाँ सर भूल गया मैं मोबाइल में है लेकिन जल्दबाजी में था, तो हरी में भी आ जाएगा, हरी इन एवरीथिंग आ जाएगा, है ना, कि जल्दबाजी में आ गया सर, जल्दी जल्दी में आ गया, कुछ बोलेगा सर मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने बता लो, फाइल बाद में बता लेंगे, तो उसका अलग पर्सनैलिटी रहेगा, इम्पेशेंट वाला रहेगा वो बंदा, है ना, कि यार इतना भी सबर नहीं कि जाकर फाइल लेकर आ जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि गाड़ी पे फाइल में रखता हूँ, फिर पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, है ना, तो वो और ज्यादा फिर केयरफुल वाले हो जाते हैं, उनका शायद फियर हैपन समथिंग विल टू ब्रेक आ सकता है।
कुछ लोगों के बैग्स आप देखो उसमें सब चीजें होती है ना, कुछ लोग पाउच कैरी करते हैं वो, तो उसके अंदर सारी चीजें होती है। अगर आप कुछ भी मांगो, मेरा एक दोस्त है, उसको आप सीजर भी मांगो तो उसमें से निकाल के देता है, नेल कटर भी मांगो तो निकाल के देता है, चिल्लर भी मांगो तो निकाल कर देता है, चाकू भी मांगो तो निकाल कर देता है। तो ही गिव्स ऑल हिज औजार साथ में रखता है बंदा। मेरे को हंसी आ रही, बट इज दैट केयरफुल, बट इज कोई चीज की कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं, इतना ज्यादा वो ये है, केयरफुल है। तो उसको आर्सेनिक दिया था मैं उस बात पर से। हम्म? पहले आर्सेनिक दिया था कि बहुत ज्यादा केयरफुल है, पर बाद में पता चला कि ये प्लीजिंग वाला है, कि पता नहीं किसको कब जरूरत पड़े। सर आपके साथ में रहता हूँ मैं, आपको पता नहीं कौन सी चीज की जरूरत है। तो ही सो क्लोजली अटैच्ड टू मी, तो रिलीजियस अफेक्शंस आई हैव टेकन एंड रिलीजियस अफेक्शंस देखो, he is so attached to me, I am like this to him। तो रिलीजियस अफेक्शंस लिया मैं उसके अंदर, देख लो तो उसके अंदर आर्सेनिक है, और केयरफुल ले लो, तो आई had given him arsenic on that, and carcinosin later I gave him because his nature is very pleasing। तो हर चीज, हर एक के लिए हर एक का ध्यान रखेगा, फैमिली के अंदर बच्चे का भी सामान रखेगा, बेटी का भी रखेगा, बीवी का भी रखेगा, दादी साथ में, तो उनका सबका सामान ये साथ में रख के ये चल रहा है लेकर के, जिम्मेदारी खुद लेके सबकी, सबका आगे दे रहा है, सबको ध्यान रख रहा है। तो उस पर से उसको कंसल्टेशन दिया था बाद में फिर, है ना। तो थोड़ा सा हम उसको पूछेंगे, ये चीजों को हम पेशेंट से पूछेंगे, जो जो हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन हम एक साइड में लिखते रहेंगे, दिमाग में लिखते रहेंगे, बाद में आपको लिखने का जरूरत नहीं रहेगा। मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किताब में, आपकी नोटबुक के अंदर मत घुस जाइए केस केस टेकिंग करते वक्त, केस रिसीविंग करते वक्त। आपका नजर पूरी तरह जब तक पेशेंट अंदर आया है और जब तक पेशेंट जा नहीं रहा है, आपका पूरा पूरा ध्यान पेशेंट की तरफ ही होना चाहिए। और इतना अच्छे से आप बैठो, इतना इस तरीके से आप अपना लैपटॉप या पीसी रखो कि आपको पेशेंट भी दिखे और आप इधर टाइपिंग भी करके आए। तो भगवान ने दो आंखें दी हुई है आपको, याद रखिए। तो आप एक आंख से आप इधर टाइपिंग भी कर सकते हैं और आप पेशेंट की तरफ भी देख सकते हैं। इतना आप अच्छे से ट्रेन हो सकते हैं अगर आप अपने आप को प्रॉपरली उसको ढाल लोगे उसके अंदर, तो इतना आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। ओके, अब पेशेंट रिपोर्ट दिखा रहा है, पेशेंट की आवाज कैसी है ना, उसका टोन कैसा है, द टोन विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इज, वो कौन सी बात को आवाज बढ़ा रहा है, कौन सी बात में आवाज कम कर रहा है, उसके उतार चढ़ाव कैसे है। जैसे मैं बात करते हूँ, कहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, कहाँ पर मैं ऐसी बात करता हूँ, कहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़ी आवाज में बात कर लेता हूँ, कहीं पर मैं एकदम सॉफ्ट हो जाता हूँ, कहीं पर एकदम मेरा रफ टोन हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार ये बंद करो यार, बीच में क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा बोलता हूँ। तो ये सब चीजें देखिए कि कौन सी चीज से ये इरिटेट हो रहा है, कौन सी चीज पे हाइपर हो जा रहा है, या नहीं भी हो रहा है आपके सामने ये इरिटेट। कौन सी चीज में लोग आजकल ऐसा करते हैं ना, आपने कोई सवाल में सर कैसा है ना, ऐसा बहुत लोग आपको करते हुए दिखेंगे। तो दैट कैन बी टिक्स, कैन बी आंसरिंग एवर्जन टू, इट कैन बी अ साइन ऑफ इरिटेशन, और इट कैन बी सिंपली अफेक्टेशन। नाउअडेज लोग पीपल डू मेनी थिंग्स टू इम्प्रेस। तो ये अभी करके बात करना बहुत ही है आजकल। अगर आप जाकिर खान की वीडियोस अगर आप देखोगे, जाकिर वो स्टैंड अप वाला, तो उसकी बात करने में ऐसा बोलता है, देखो अगर आप देखो, और वो आजकल की बहुत लोगों के अंदर मैंने वो स्टाइल देखी हुई है ऐसी बात करने की। तो वो अफेक्टेशन भी है, इम्प्रेस करने के लिए भी लोगों को पता नहीं कैसे करना है तो करते भी हैं। वो अपनी स्टाइल बनाने की कोशिश में भी लोग करते हैं, अपनी खुद की एक स्टाइल डेवलप करना भी एक अफेक्टेशन है, या इम्प्रेशनेबल है, इम्प्रेशन मारने की कोशिश करना भी होता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी उसमें आती है, ठीक है। तो और टॉक के अंदर अगर चाहे वो कौन सी जगह पर उसकी आवाज बढ़ रही है, और एकदम प्रॉपर अगर उतार चढ़ाव के साथ में अगर डिस्क्राइब कर रहा है कि सर इतना दर्द होता है, क्या बताए, ऐसा लगता है कोई काट रहा है, इतना जलन होती है सर कि क्या बताए आपको, जैसे आग जल रही है सर। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव रूब्रिक आपके मन में सबसे पहले आने दो, भले वो कम्युनिकेटिव है नहीं है ये अपन देखेंगे, पर एक पॉसिबिलिटी आप क्वेश्चन मार्क करके रख दो फट से कम्युनिकेटिव। और आप शॉर्ट फॉर्म्स बना लो, जैसे अभी इरिटेबिलिटी पेन नहीं है तो आईपीडी लिख लो, है ना। कम्युनिकेटिव सी और डबल एम लिख दो। आप वो थोड़ा सा फटाफट आप शॉर्ट फॉर्म लेके आप लिखने की आदत लगाओ, क्वेश्चन मार्क कर दिया करो, और फिर बाद में आप उसको, एक होता है एनालिसिस, दूसरा होता है इवेल्युएशन। तो एनालाइज करते वक्त आप डालते चलो, और जो जो भी आपने एनालाइज किया उसको आप इवेल्युएट करेंगे बाद में। इवेल्युएशन करना मतलब वो सही था, गलत था, एप्लीकेबल था, नहीं था, वो एक रहेगा। मतलब उसके अंदर हम लोग सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक करेंगे, पहले हम रूब्रिक ले लेंगे,
फिर उसमें से हम रूब्रिक सिलेक्ट करेंगे या पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी बात पर हम प्रिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आज के पॉइंट्स। बाकी का बचा हुआ जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है केस टेकिंग। ये चीजें आप लेकिन ध्यान में रखिए, एंट्री कैसे नहीं है, फिर मैं बीच में क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, उस पर क्या रूब्रिक्स ले रहे हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। कंक्लूड करते वक्त पेशेंट क्या बोल रहा है, वो बातों पर क्या होता है, उस पर मैं रूब्रिक्स क्या लेने को आपको बताऊंगा। दूसरा, केसेस भी आपको मैं कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस बताने की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं एंट्री से कहा रेमेडी दिया था वो भी मैं कोशिश करूंगा पेशेंट से परमिशन लेकर के इंशाल्लाह। ओके, मीनवाइल अगरचे आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप इसमें जाके यूट्यूब पर जाकर के मेरे लेक्चर के नीचे जो भी आप नेक्स्ट लेक्चर में देखना चाहते हो या उस लेक्चर में जो चीजें आपको नहीं समझी है उसके क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर जाकर के हमारे चैनल में वहां पर आप जरूर क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। Thank you very much. Over to you, Mansi. Any questions still you have, you can ask now. I'll take 3-4 questions if there are any. Okay, I believe there are no questions, Mansi. Yes, sir. Oh, thank you very much, sir. Very practical session again. जो what we can say nuances होते हैं केस टेकिंग के, सो ये कभी कभी हम भूल जाते हैं ये चीजें, तो बहुत अच्छा सेशन है। और इसके आगे के सेशन जो कंटिन्यूअस रहेंगे केस टेकिंग के, तो वो भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सबसे कि वो आप अटेंड कीजिए, ताकि ये चीजें जब क्लिनिक में आपसे छूट ना जाए ये छोटी छोटी चीजें। क्योंकि सर का जो ऑब्जर्वेशन का स्किल है वो हम लोगों ने भी देखा है, सर के क्लिनिक में बैठ के देखा है कि हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है तो फट से और उतने में सर की केस निकल जाती है। मतलब कि अगर 5 मिनट की केस है सर की, तो हम लोग बोलते हैं बाप रे इतनी लंबी केस कैसे हो गई सर की। तो सर की केस 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में ही हो जाती है। तो ये आप इसका अनुभव ले सकते हैं, लेक्चर में ले सकते हैं अभी, तो मिस मत कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू वेरी मच सर। सो एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। Thank you. Next Thursday we have a surprise. Okay, there are going to be 4 or 5 lectures, big lectures, inshallah. Waiting for that. Dr. Mansi will announce that. Okay, thank you. Pranita, you want to say something? हेलो, यस सर, हेलो। जैसे आपने आज सीखा केस टेकिंग, तो सर की बुक है ह्यूमैनोपैथी, काफी जन को पता होगा, जिसको नहीं पता है उनके लिए वहां पे सर ने केस टेकिंग बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया है। तो यू कैन बाय दिस बुक डेफिनेटली। सिर्फ 200 रुपीज का बुक है, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, मतलब 200 रुपीज इज नथिंग। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट बुक। और दूसरी चीज, अगर आप सर से पर्सनली सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। हमारे कुछ ऑनलाइन अलग अलग कोर्सेज है। अभी 10th अप्रैल से हमारी 2 कोर्सेज और चालू हो रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम कि आप Day 1 से स्टार्ट ज्वाइन कर सकते हो। फ्लायर पे मेरा नंबर है, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगी कोर्सेज के बारे में। ठीक है, थैंक यू। Thank you, Dr. Pranita. Bye.